Hello everyone, today in this video we are going to do the lesson 2 of unit 2. In the last video we have covered till unit 1 and unit 2 lesson 1. So now e-business. When we talk about e-business, it's a very wider term which include commerce, marketing and many more. So it's an umbrella term that includes e-commerce and refers to the use of internet and private intranet to transform a company's value chain. Internet is basically a public network and private intranet is basically a private network with a limited users only. Right, so companies value chain set up a very close connection between the internal process, supplier, partner interaction and customer relationship. So जब हम ई बिजनेस की बात करते हैं, इसका सिंपल मतलब ये होता है जब बिजनेस एक्टिविटीज़ को डिजिटलाइज्ड कर दिया जाता है. A firm with an effective e-business strategy develop the capabilities needed to improve the flow of information. क्योंकि अब e-business setup हो गया, then information can easily transfer from one department to another. Moving a business to the internet is a sound strategy for increasing business volume and make a business instantly international and opening up new possibilities. क्योंकि अब e-business आ गया है तो उससे जो बिजनेस है उनको प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करने का टाइम मिल गया है. अब उनको ज़्यादा फिजिकल सेलिंग पे ध्यान नहीं देना पड़ता है क्योंकि वो बाय वेबसाइट ईजिली हो जाती है मैनेज. तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ पे ध्यान देते हैं और मिनिमम कॉस्ट में उनको सेल करते हैं जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है हाई आए. ई-बिजनेस विद सपोर्ट ऑफ ई-कॉमर्स मेक अ 24/7 बिजनेस. पहले एक समय के बाद जो है फिजिकल शॉप जो है क्लोज हो जाती थी, लेकिन क्योंकि अब ई-बिजनेस सेटअप हो गया तो 24/7 वेबसाइट्स ओपन है आपके लिए. नाउ ट्रेड साइकिल. Trade cycle is basically a series of exchange between a customer and supplier. Series of exchange of products and services between a customer and supplier that take place when a commercial exchange is executed. So general trade cycle consists of 4 phases. First one is pre-sale. Pre-sale simply means finding a supplier and agreeing the term of the trade. सबसे पहले एक supplier होगा जो कि terms of trade and commerce है, rules है जितने भी उनको agree करेगा. And then execution. This phase consists of various tasks in selecting goods and taking delivery. इसका मतलब customer order देगा और उसके बाद उसकी डिलीवरी उसको मिल जाएगी. सेटलमेंट. दिस फेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस टास्क, इनवॉइस एंड पेमेंट. क्लासिफाइड इन इनवॉइस एंड पेमेंट. जब वो डिलीवरी बॉय डिलीवरी देगा तो बदले में कस्टमर को इनवॉइस देगा और कस्टमर उसको पेमेंट देगा अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो. आफ्टर सेल्स. दिस फेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस टास्क इन फॉलोइंग अप कंप्लेंट्स और प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस. अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बाई ईमेल एंड फोन सपोर्ट आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. देन जेनरिक ट्रेड साइकिल. जेनरिक ट्रेड साइकिल में 2 हैं. रिपीट ट्रेड साइकिल. रिपीट ट्रेड साइकिल फॉर एग्जांपल टायर एंड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो डेली बेसिस पर होती हैं. सो दीज ट्रेड साइकिल कंटेन रेगुलर रिपीट ट्रांजेक्शन बिटवीन द कमर्शियल ट्रेडिंग पार्टनर्स. Now the next one is the credit trade cycle. Credit trade cycle, for example, the ice creams and the woolen clothes, right? So these trade cycle contain the irregular transaction क्योंकि एक टाइम पीरियड के लिए होती है in ones of trading the relationships. Now nature of trade cycle. The nature of trade cycle can indicate the e-commerce technology most suited to the exchange. अब e-commerce जो है कैसे साथ देता है trade cycle का? Basically use of e-commerce in trade cycle. So the first one is the commercial transaction that are repeated on a regular basis such as supermarket, EDI is the e-commerce technology appropriate to this exchange. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज where one company transfer the information to the another company rather than on papers. तो सुपर मार्केट्स, EDI इन सबकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स होती हैं जो कि एक ट्रेड साइकिल. क्योंकि ट्रेड साइकिल का सिंपल मतलब क्या है? एक तरह से प्रोडक्ट को पहुंचाना फ्रॉम सप्लायर टू द कस्टमर. सो EDI एंड इन सुपर मार्केट्स द प्रोडक्ट्स आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सप्लायर टू द कस्टमर. नाउ द सेकेंड वन इज द कंज्यूमर ट्रांजेक्शन. कंज्यूमर ट्रांजेक्शन टेंड्स टू वंस ऑफ and payment is made on the time of order. Internet in e-commerce is the technology for these exchange. This simply means कि इसमें कंज्यूमर ट्रांजेक्शन की बात की गई है कि जब कंज्यूमर को जो है प्रोडक्ट मिल जाता है और सप्लायर को पेमेंट मिल जाती है तो वो जो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो दिया गया है वो विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स दिया गया है जो कि रन किया जाता है इंटरनेट की हेल्प से. नाउ द थर्ड वन इज द थर्ड जेनरिक ट्रेड साइकिल इज द नॉन रिपीटिंग कमर्शियल ट्रेड साइकिल एंड इंटरनेट ई-कॉमर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट इज द अप्रोप्रिएट ई टेक्नोलॉजी फॉर इट. जो थर्ड जेनरिक ट्रेड साइकिल है वो नॉन रिपीटिंग कमर्शियल ट्रेड साइकिल है. इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स है वो इरेगुलर होती हैं, राइट. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर थर्ड टॉपिक. थैंक यू.